Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talks. This is Adi Achint. I have someone really special who specializes in a place in Pakistan that we are interested in. Probably one of the only territorial requirements जो इंडिया की है उसके बारे में हम बात करेंगे जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान अ रिनाउंड वॉइस डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा सर थैंक यू सो मच आप मेरे शो पे आए मेरे को टाइम दिया आपने सर आई नो यूर अ वेरी बिजी पर्सन एंड अ वेरी Thank you हर्ड for वॉइस having me. प्लेजर्स ऑल माइन सर सर थोड़ा सा लेट्स ओपन अप द डिस्कशन सर हो क्या रहा है सर व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड कहाँ बहुत डिटेल में रिपोर्ट्स आती नहीं है पीओके के बारे में प्रोटेस्ट की विजुअल्स आती हैं प्रोटेस्ट की फोटोग्राफ्स आती हैं लोग काफी अपसेट दिखते हैं व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड सर क्या क्या चल रहा है वहां पर देखें अगर तो आप जैसे काफी लोग सुनते हैं हमारा रेडियो हिमालय, अगर आप रिलीजियसली सुने डेली, उसमें हम बहुत सारी डिटेल्स जो है वो पीओजेके की और पीओजीपी की देते हैं। मिसाल के तौर पर आज हमने रेडियो हिमालय में जो रिपोर्ट किया है वो ये किया है कि देर आर अबाउट 10 डिस्ट्रिक्ट्स इन पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान. And now the district of Astor, like other districts, is facing shortage of wheat. And people who normally wake up and go to work are not going to work anymore. Instead, they are going looking for wheat because that is their staple diet. और वो गेहूं चूंकि मिल नहीं रहा, तो वहां पे अब स्टारवेशन शुरू हो गई। यानी गिलगित बल्तिस्तान के जो बहुत सारे इलाके हैं वहां स्टारवेशन है। लाइकवाइज इन पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, people in real like terms in destitute, or there's no wheat, there's no bijli, there's no water, there is no health infrastructure, there's no education infrastructure. And the other day, this young man, I was talking to him and I said, "You look very busy." He said, "Yes, Dr. Saab, uh, sitting my exams. I'm taking इम्तिहान हो रहे हैं." तो मैंने कहा इम्तिहान किस लिए दे रहे हो जब जॉब ही नहीं मिलनी? तहरीक आज़ादी जो है वो उसमें शामिल हो तो आज़ाद होने के बाद तुम्हें श्रीनगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दूंगा मैं। मतलब आई वाज जस्ट ये कन्वर्सेशन चल रही हैं। Now, at the moment, Pakistani occupied Jammu Kashmir and Gilgit-Baltistan are politically the most volatile regions in that part of the world. And people, it was a journey. It was a journey from false narratives to neutralized narratives, मूविंग ऑन टू प्रो इंडिया नैरेटिव, और उसमें हमने बड़ी मेहनत की है। जाहिर है पाकिस्तान ने तो हमेशा ये कहा है कि इंडिया ने हमला किया, इंडिया ने कब्जा किया, लेकिन हमने फिर वो सबसे पहले तो ये झूठ उनका बेनकाब किया फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि how Pakistan army orchestrated the attack on 22nd of October 1947 with the consent, or maybe not even consent, with the orders of the British, because the British never wanted Jammu Kashmir to annex with India. They wanted it either as a satellite puppet state or independent state, or annex it with Pakistan. There were several reasons for that. Obviously, one of the main reasons was that they wanted to keep India under control by controlling the waters that flow into India. Second was they wanted to deny India land access to Central Asia, also Soviet Union tha. And so on and so forth. So in a broader perspective, if you look at it, it was part of the ongoing great game that started in 1860, 1861 between Russian Empire and the British Empire, which was holding India as its colony. अब सूरत हाल फिर ये है कि वो न्यूट्रल उसको डिसाइफर किया नैरेटिव को, फिर ये नैरेटिव जो था बिल्ड किया
कि हमारा इंडिया के साथ एक्सेशन हुआ है 26 अक्टूबर 1947 को. वी आर ऑल इंडियन सिटीजन्स. सो दैट केम एज अ शॉक टू मेनी पीपल व्हेन आई स्टार्टेड सेइंग दैट. I mean, it came as a shock to the people in POJK and POGB because they were never told about that. They never imagined that. And it was a very rude awakening for the people of POJK and POGB when I started saying that हम भारतीय नागरिक हैं, जय हिंद मैंने बोलना शुरू किया, which was unheard of. आज तक मैंने तो किसी कश्मीरी लीडर को जय हिंद बोलते नहीं सुना. तो ये चीजें नाउ अब लोग जो है वो समझ गए हैं सारा कुछ. ये सारी गेम समझ गए हैं. यासीन मलिक की गेम, JKLF की गेम, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की गेम, ये सारा उनको समझ आ गई है. और उसके साथ साथ ये भी समझ आ गई है कि पाकिस्तान आर्मी ने एक फेक नैरेटिव बिल्ड करके कैसे पाकिस्तान इकोनॉमी को कंट्रोल किया, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया और अपने जो एग्जिस्टेंस है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, ये कह के कि इंडिया जो है नेबर हॉस्टाइल है और हमारा दुश्मन है और अगर हम नहीं होंगे तो आपको कौन बचाएगा. तो वो सारा अब खत्म हो गया है, कहानी खत्म हो गई है. अब तो हम बहुत जल्दी एक नई फेज, बल्कि नेक्स्ट मंथ हम एक बड़ी अनाउंसमेंट भी करने जा रहे हैं. और मेरा ख्याल है कि अब बहुत जल्दी ये मसला सॉल्व हो जाएगा POJK और POGB का. जी, ये अनाउंसमेंट के काफी रूमर्स सुनने में आ रहे हैं, बट एनीवेज विल वेट फॉर नेक्स्ट मंथ क्या होता है और कैसे निकलता है. बट सर, आपने लोगों की बात करी और आपने प्रोपेगेंडा की बात करी. 70 साल से एक चूरन जो खिलाया गया है इनको लोगों को कि भाई आपके साथ पता नहीं वहां पर हिंदुस्तानी आ जाएंगे तो आपको पता नहीं पतीले में डाल के आपका पेस्ट बना के खा जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ द होल नैरेटिव जो बिल्ड किया गया है. एंड यही चीज अगर आप याद करें बांग्लादेश में, जब अर्सवाइल ईस्ट पाकिस्तान में भी यही चीज बोले जाते कि हिंदुस्तानी फौज आएगी, जो हम आपके साथ कर रहे हैं वो तो कम है, हिंदुस्तानी तो आपको जिंदा खा जाएंगे. ये जो नैरेटिव एक लोगों के दिमाग के अंदर है, अब ये देखिए जो आइडियोलॉजी और नैरेटिव लोगों के दिमाग के अंदर बैठ जाता है सर, वो निकलते निकलते तो बहुत टाइम लगता है. बट सर आज लोकल आवाजें क्या बोल रही हैं सर? व्हाट आर द लीडर्स जो जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो पॉलिटिकल लीडर्स सर, जो सोसाइटल लीडर्स होते हैं, जो हमारे इंडिया में एक ट्रेडिशन होता है ना सर, बड़े बड़े लोग, सोसाइटी के बड़े लोग जो एल्डर्स होते हैं, उनका क्या कहना है सर? भाई एल्डर्स, बड़े लोग से तो मुझे नहीं पता कि आपका क्या मतलब है, लेकिन एल्डर्स जो है अबव 70 कह लें हाँ जी, हाँ जी. एज वाइज, वो तो महाराजा हरि सिंह के दौर को बहुत याद करते हैं. वो तो कहते हैं बहुत अच्छा दौर था. और आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जो लोग जिंदा थे और जिन्होंने हरि सिंह का दौर देखा था, वो तो जानते थे इस चीज को. लेकिन जब आप चारों तरफ से POJK में मीडिया सेंसरशिप लगा दे, आप चारों तरफ से इंफॉर्मेशन ब्लॉक कर दें और आप लाउड स्पीकरों से और टीवी से और न्यूज़पेपर्स के जरिए एक ही नैरेटिव बार बार बम्बार्ड करते रहे, तो फिर जो है वो लोगों के पास कोई अल्टरनेट नैरेटिव तो है नहीं, तो वो झूठ को ही सच समझना शुरू कर देते हैं. और दूसरी चीज स्टॉकहोल्म सिंड्रोम है, इसमें आप अपने जो आपको जिसने कैप्चर किया हुआ है, जिसने आपको होस्टेज बनाया हुआ है, यू स्टार्ट एडमायरिंग योर कैप्टर, you start admiring, you start associating yourself with that, and you start to fall in love with that captor. तो इस पे काफी फिल्में भी बन चुकी हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा. लेकिन देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं, इसको आपको जाना पड़ेगा बहुत दूर, 1000 साल के करीब, जब अरब इन्वेजन शुरू हुई. उससे पहले तो इस्लाम का यहाँ कोई लेना देना नहीं था. तो अरब इन्वेजन एक कॉलोनियल इन्वेजन थी, एक इंपीरियलिस्टिक इकोनॉमिक एक्सपेंशन थी टूवर्ड्स इंडियन ओशन, सिंध, मालाबार से भी और सब तरफ से. तो जब एक प्रेसर जब किसी कॉलोनी बनाता है, तो वो सबसे पहला नैरेटिव जो डेवलप करते हैं, कल्चरल नैरेटिव, वो ये होता है कि आप जो है कल्चरली बैकवर्ड हैं, हम कल्चरली एडवांस हैं,
और वो फिर आपकी चीजों को मॉक करते हैं, आपकी लैंग्वेज को मॉक करेंगे, आपके कपड़ों को मॉक करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो लोकल आबादी होती है, उसकी जो एलीट होती है, वो सिमुलेट करने की कोशिश करती है अपने ऑक्यूपायर के साथ। वो ड्रेस भी वैसा पहनती है, वो अरबी भी सीखना शुरू कर देते हैं, वो हिंदी और उर्दू के ऊपर अरबी को फौकियत देते हैं कि अरबी जो है इसमें कुरान उतरा था, लिहाजा अरबी जुबान जो है ये हिंदी जुबान से या उर्दू जुबान से ज्यादा जो है कि कल्चरली एडवांस है और बेहतर है, लिहाजा अरबी जरूर सीखनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो पहनावे उस तरह के शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ये डिमोनाइज किया गया सनातन धर्म को, हिंदू कल्चर की जो रिचुअल्स है उनको, उनके मजाक उड़ाए गए, उनको कल्चरली जो है रिजेक्ट किया गया। तो वो एक माइंडसेट अभी तक चल रहा है। आप देखें कि हिंदुस्तान में हजारों मस्जिदों को बनाया गया मंदिरों के ऊपर, यानी जो टेम्पल्स थे, हिस्टोरिक टेम्पल्स थे, जो कि हेरिटेज बिल्डिंग्स होनी चाहिए आज के दौर में, यानी कि दे कैन नॉट बी अल्टर्ड, दे कैन नॉट बी डिमोलिश्ड, दे आर हेरिटेज बिल्डिंग्स। उनके ऊपर मस्जिदें बनना शुरू हो गई। तो वो जो मस्जिद, मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, उसको भी ये देखा गया कि ये एक लीप है टुवर्ड्स कल्चरल सुपरियोरिटी, जबकि वो लीप नहीं है, वो डिस्ट्रक्शन है। वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में आपने अप्रेस्ड पीपल को डाल दिया है। तो ये उसी का शाखसाना है जिसके ऊपर टू नेशन थ्योरी बनती है। और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किसने किया, इस ऑपरेशन को, इस रिलीजियस कल्चरल ऑपरेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया 1909 में मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म्स, जिसने सेपरेट जुदागाना इंतखाबात, मुसलमानों के लिए अलहदा, हिंदुओं के और नॉन मुस्लिम्स के लिए अलहदा, वहां से ये सिलसिला है। फिर सर सैयद अहमद खान, हु सर सैयद अहमद? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मुसलमान अगर अंग्रेजों के खिलाफ है तो सर का खिताब कैसे मिल गया? जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, कहते हैं अल्लामा इकबाल, वो भी सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल है। इनको सर के टाइटल्स अंग्रेजों ने क्यों दिए? इसलिए कि ये उनको गालियां देते थे? नहीं, इसलिए कि ये अंग्रेजों के सहूलतकार थे, इसलिए कि ये अंग्रेजों के एजेंडे पर काम कर रहे। इनको तब नाइटहुड्स दी गई। और सैयद अहमद खान खुद भी जो है वो मुगल दरबार की एरिस्टोक्रेसी से, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से उसका ताल्लुक था। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई गई, जो क्रूसिबल बना हिंदुस्तान को कम्युनल बुनियादों पे उस तकसीम को बरकरार रखने पर, जो तकसीम अंग्रेजों ने 1909 में जिसका आगाज किया, और उसको फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जरिए, मोहम्मदन यूनिवर्सिटी थी पहले, फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहीं से फिर आप देखें पाकिस्तान की सारी तहरीक जो है वो यूपी के इर्द गिर्द ही घूमती है, या बंगाल में। तो इसको फिर जो आजादी की तहरीक थी, वो तो बड़ी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी, उसमें बड़े बड़े नाम थे जिनका आज कोई नाम ही नहीं लेता। श्री चंद्र सुभाष बोस जो है वो थे। कम्युनिस्ट पार्टी को ले ले तो वहां एम एन रॉय और बड़े बड़े नाम वहां पे भी मौजूद थे। नमूंद्री पद थे, मतलब बहुत बड़े बड़े नाम उस जमाने के थे। लेकिन और सरहदी गांधी जिनको बोलते गफ्फार खान, ये लोग थे, इनका एक स्ट्रेचर था। तो वो उसको फिर तबाह किया। कैसे उसको तबाह किया? कम्युनल बेसिस पे। असल में जब शोलापुर में बगावत होती है 1946 में, उसमें क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, मुसलमान सब ने मिलकर वो नेवल रिवोल्ट किया था। तो उसके फौरन बाद आप देख लें कि इन्होंने कहा पाकिस्तान इस डेट को बनेगा, इंडिया का बंटवारा हो जाएगा, इस तरह से। और फिर आप देखें कि 1946 के इलेक्शंस में जो मुस्लिम लीग थी, पूरे पाकिस्तान जो बना है, यहाँ पे तो वो हार गई थी। खैबर पख्तूनख्वा जो आज का है, यहाँ तो कांग्रेस जीती थी, एक सीट मुस्लिम लीग ने ली थी। तो कैसे ये फिर इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि ये लोग 8-10 महीने में पाकिस्तानी कैसे बन गए? ये बने नहीं है, इनको बनाया गया वेस्टमिनिस्टर में बैठ के लाइनें लगा के।
ये इधर कर दो, ये इधर कर दो, और हिंदुस्तान के बाजू काटे गए, हिंदुस्तान को सजा दी गई एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चलाने की। श्री चंद्र सुभाष बोस जैसे बेटे पैदा करने की सजा दी गई हिंदुस्तान को। और पीओजे के जो है यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर पे हमला हुआ है, ये उस सजा की कंटिन्यूएशन है कि काट दो हिंदुस्तान को, जख्मी कर दो, तोड़ दो, इसको घुटनों पे ले आओ, हिंदुस्तान को ये आजादी मांगते हैं, कर दो इनको आजाद, लेकिन ये फिर भी जो है हमारे मोहताज रहे। तो वो सिलसिला आज तक चल रहा है और इसमें टाइम लगेगा, और इसकी 3 फेजेस मैं समझता हूँ। मतलब एज एन इंडिविजुअल, मैं कोई फिलोसफर नहीं हूँ, लेकिन एज एन इंडिविजुअल मैं जब सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ उसकी 3 फेजेस होंगी। एक तो ये होगी कि मुसलमान जो इंडिया के हैं उनका इतिहास से जानकारी करना बहुत जरूरी है कि कैसे यहाँ मुस्लिम इन्वेजन, अरब इन्वेजन हुई, और फिर इस्लाम यहाँ पे एज अ रिलीजन स्प्रेड नहीं हुआ, एज अ वे ऑफ लाइफ स्प्रेड नहीं हुआ। इस्लाम हिंदुस्तान में फैला एज अ कल्चरल टूल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द लोकल पीपल। इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये नहीं समझ, देखे ना, टीपू सुल्तान को हीरो मानते हैं। मतलब है, मैं अब क्या कह सकता हूँ, सैफ अली खान नाराज हो जाएंगे अगर मैं टीपू सुल्तान को कुछ कहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे का नाम टीपू रखा है। तो इससे पता लगता है कि जो हिंदुस्तान की कल्चरल एलीट भी है वो भी नहीं अपने इतिहास को जानती है ना। मतलब आप सोचे ना कि मैं अब अपने बच्चे का बेटा पैदा हो तो उसका नाम रख दूं हिटलर, या अपने बेटे का नाम रख दूं मसोलिनी, तो फिर मेरा कसूर है ना इसमें, हिंदुस्तान का तो कसूर नहीं है। तो पहला तो ये स्टेज है कि हिंदुस्तान में एक मैस कैंपेन होनी चाहिए, री एजुकेशन कैंपेन मैस लेवल पे हिस्ट्री के बारे में। दूसरा ये, फिर आप न्यूट्रलाइज करें ये मुस्लिम पॉपुलेशन को और उनको मेंटली प्रिपेयर करें, उनकी मानसिकता जो है उसको साफ करना पड़ेगा। और फिर जो है वो चाहे तो सनातन धर्म में आ जाए, चाहे तो वो बिल्कुल मतलब है कि एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन ये जो इस वक्त कम्युनल बेसिस पे भारत को हर दफा डिवाइड किया है। आप देखें, शाहीन बाग देख लें, कोई भी आप इशू उठा, सीए का इशू उठा के देख लें, कोई भी देख लें, वो उसमें पॉलिटिकल बहस जो होती है वो ओवर शेडो हो जाती है कम्युनल इश्यूज, उसको कम्युनल इशू बना दिया जाता है। ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, ये इनको, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये जो मुसलमान है इनमें भी 90% तो वही हैं जो यहाँ के मकामी हैं, 10% उनकी औलादे हैं जो बाहर से इन्वेडर आए और यहाँ सेटल हो गए। तो इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है जी। नहीं, वो तो आप एकदम ठीक बोल रहे हैं सर। यू नो, एक वो बोलते हैं ना, यू मस्ट नो वेयर यू केम फ्रॉम, देन ओनली यू नो वेयर यू गोना हेड। सो दैट इज, उसका तो सर कोई वो है नहीं, देयर इज नो टक्कर इन दैट। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, फनीली, सैडली स्पीकिंग, इंडिया की जो अपनी हिस्ट्री है, हम लोगों को भी नहीं पता था हम कहाँ से आए हैं, हमारी क्या अपनी हिस्ट्री है। तो अभी वो रियलाइजेशन हो रही है, तो आई गेस कुछ आगे होगा सर। यू नो, ये जो वहां पर लोग हैं, देयर इज अ पॉलिटिकल मूवमेंट ऑब्वियसली देयर, बट एक जो सेपरेशन की भावना होती है कि भाई हमको ये, अब ये बहुत हो गया, हमको हटना है इससे, ये जो पाकिस्तानी सिस्टम है इसको तोड़ना है हमको। उसके लिए एक मास मूवमेंट की जरूरत होती है सर, उसके लिए एक मास लीडर की जरूरत होती है, उसके लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है सर। आपकी आंखों में सर वहां पर ऐसा कुछ चीज बिल्ड हो रही है जहां पर हमको कुछ, यू नो, इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर डेवलपिंग इन दैट रीजन सर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, किसी भी समाज में, किसी भी मुल्क में जब इकोनॉमिक क्राइसिस हिट करता है, और खास तौर पर अगर वो समाज, दो किस्म के समाज मुल्क हैं दुनिया में, एक वो है जहाँ पे ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है एक ही नेशनैलिटी, एक ही एथनिक ग्रुप की, एथनिक। और कुछ मुल्क हैं जहाँ पे मोर देन वन एथनिक ग्रुप है, जिनको हम कहते हैं मल्टी नेशनल स्टेट्स, यानी या मल्टी एथनिक स्टेट्स। अब चाइना की मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि चाइना में 98% खान ही है, एक ही कौम की, ठीक है ना। तो उन्होंने मौजूदों की क्यादत में वहां रेवोल्यूशन किया, नेशनलिस्टिक रेवोल्यूशन था, कम्युनिज्म का और सोशलिज्म का उसके ऊपर पेंट था, लेकिन
उसकी एसेंस में जाए ना, फॉर्म को ना देखें, उसके कंटेंट को अगर देखें, तो वो नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन था अगेंस्ट द 8 ऑक्युपाइंग कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान, बेल्जियम, नेदरलैंड, यूके, ऑल ऑफ दैम। तो वो हुआ। आज हम जब चीन को देखते हैं तो चाइना में शिनचियांग भी है, तिब्बत भी है, वर्जू के लोग भी हैं, सारा कुछ है। लेकिन ये तो उस इनकलाब का ना हिस्सा थे, ना उस रेवोल्यूशन का हिस्सा थे, ये तो बाद में ऑक्युपाई किए गए ना। ठीक है ना, कि भाई इनकलाब को तिब्बत तक फैलाना है, इनकलाब को शिनचियांग तक फैलाना है, वो अंडर द गाइड्स ऑफ स्प्रेडिंग रेवोल्यूशन दे वर कॉलोनाइज्ड बाय कम्युनिस्ट चाइना, राइट। अब आ जाए आप कसीरुल कौमी रियासतों की तरफ। यानी कसीरुल कौमी, यानी कसीर का मतलब होता है एक से ज्यादा, कौमी यानी नेशनल। तो जब मैं नेशनल कहता हूं तो आप उसको एथनिसिटी के मायनों में ही ले। तो अब पाकिस्तान के अंदर बंगाली, पंजाबी, सिंधी, बलोच, पश्तून, हजारा और बेशुमार जो है वो कौमें बसती हैं, लेकिन 5 बड़ी कौमें थी। तो जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया और उस इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर डिसाइसिव पॉलिटिकल जो है वो डिसीजंस लेने का टाइम आया, और उसमें अवाम ने वोट दिया अवामी लीग को, और वो चूंकि बंगाल में जीती थी और वो बंगाली पार्टी थी काइंड ऑफ, तो आपने तो उनको गवर्नमेंट नहीं बनाने दी, तो क्या हुआ? वहां बगावत हुई, वहां पे जंग हुई, उन्होंने अपना हिस्सा अलहदा करके मुल्क बना लिया। अब आते पीओजे की तरफ। अब ये बैकग्राउंड मैंने आपको दिया एक के, जहां पे एक ही नेशन एथनिक ग्रुप डोमिनेंट होता है, और दूसरा जहां पे मुख्तलिफ ग्रुप्स को इकट्ठा करके एथनिक ग्रुप्स को एक नेशन स्टेट बनाई जाती है। अब देखें, जो मल्टी नेशनल या मल्टी एथनिक स्टेट्स होती हैं, वहां जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो वहां सबसे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस जो है आने के बाद वो उस पर रंग चढ़ना शुरू होता है कौमियत का। मसला पश्तून कहेंगे कि जी हम पश्तूनों के साथ ज्यादती हो रही है, बलोच जिस तरह आज कह रहे हैं बलोचों के साथ ज्यादती हो रही है, सिंधी कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ठीक है ना। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन होती है ये उस वक्त तक डिसाइसिवली इकोनॉमिक डिमांड से पॉलिटिकल डिमांड्स में कन्वर्ट नहीं होती, जब तक उसके अंदर एक कैटलिस्ट जो है वो एलिमेंट दाखिल ना हो। और इसमें जो कैटलिस्ट एलिमेंट होता है वो होता है एक सियासी पार्टी का, एक सियासी प्रोग्राम का, एक सियासी क्यादत का। इस वक्त पीओजे में जो इकोनॉमिक डिमांड्स हैं वो वैसिलेट कर रही हैं बिटवीन इकोनॉमिक डिमांड्स एंड पॉलिटिकल डिमांड्स ऑफ आजादी। आपको इकोनॉमिक डिमांड्स मतलब पेंशन में इजाफा किया जाए, लोड शेडिंग खत्म की जाए, अस्पताल ठीक किए जाए, कहीं पे स्ट्राइक हो जाती है कि जी ये ब्रिज टूटा है इसको क्यों नहीं बना रहे, पैसा कौन खा गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बीच बीच में आपको आवाज आती है हम क्या मांगे आजादी, हम क्या, तो आप कहते हैं ये थोड़ा सा पॉलिटिसाइज हो रही है। लेकिन अभी भी इकोनॉमिक डिमांड्स की जो नारेबाजी होती है वो डोमिनेंट होती है, और जो पॉलिटिकल स्लोगन्स की नारेबाजी होती है वो समवेयर इन द बैकग्राउंड होती है। अब एक स्टेज आती है जब इकोनॉमिक डिमांड्स और पॉलिटिकल डिमांड्स जो है वो एक जैसी हो जाती हैं, यानी कि वो लिंक होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे पेंशन में इजाफा किया जाए 100%, यह मुतालबा है हमारा पीओजे का, पेंशन एसोसिएशन का। तो वो मुतालबा जब वो कहेंगे तो ये सवाल उठेगा कि पेंशन में क्यों इजाफा नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा कि हम कॉलोनी है, कॉलोनी किसकी है, पाकिस्तान की है, कैसे बने, 22 अक्टूबर के हमले से बने, तो वो पोलिटिसाइज होना शुरू हो जाए। तो वहां पे पेंशन के इजाफे का के साथ जो नारा है वो आजादी का भी लगना शुरू हो जाए। और फिर एक थर्ड स्टेज आती है जहां पॉलिटिकल जो डिमांड्स है वो आप सुपरसीड कर जाती है इकोनॉमिक डिमांड्स को, और वहां पे फिर पॉलिटिकल डिमांड जो होती है वो ये होती है कि हमें आजादी ही चाहिए, वी वांट इंडिपेंडेंस, वी वांट फ्रीडम। लेकिन वो स्टेज नहीं आ सकती उस वक्त तक जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होती मास पॉपुलेशन में कि इकोनॉमिक डिमांड्स हमारी जो है ये अंडर द करंट कॉलोनियल ऑक्यूपेशन ये डिलीवर नहीं हो सकती। वी आर नाउ समवेयर हियर। अब उसको यहां से यहां ले जाने के लिए जो है
वो हम काम कर रहे हैं उस पे, और देखते हैं क्या होता है। तो ये पूरा ये सोसाइटी की जो मूवमेंट होती है, जो हर की कवानीन है, लॉज ऑफ मोशंस ऑफ सोसाइटी, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसको जी नहीं समझेंगे तो आप फिर अपने ही लोगों को गालियां देना शुरू कर देंगे, तो है ही ऐसे, कोई इनको समझ, पंजाबी में कहते हैं वहां, तो कहते हैं अवाम ही ऐसी है जी, इन्होंने मरन दो, इन्होंने मरन दो, ये अवाम ही जाहिल है। अवाम जाहिल नहीं है। There are certain laws of motion of society. How does society move on? How does human conscious develop under certain circumstances? How does it develop? How does it move forward? Unless you understand that, you will not only not be able to lead your people, you will not be able to become a leader, you will not be able to make the right decisions. So we are somewhere over there. जी। दैट्स द मेन थिंग सर, बिकॉज कोई एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए जिसको, जैसे आप बांग्लादेश में देखें, एक मुजीब, शेख मुजीब की एक पार्टी थी, उनके फॉलोअर्स थे, उनका एक स्ट्रक्चर था, और उन्होंने जब कॉल दिया तो वो पूरा रैली निकला बाहर, एंड द रैली रैली फॉर इंडिपेंडेंस, जो क्राई फॉर इंडिपेंडेंस थी और जो क्राई फॉर सेपरेशन था, वो हुआ। सर मेरा एक मुद्दा है, थोड़ा सा पेचीदा है इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि इस जगह में पाकिस्तानी आर्मी के काफी रिटायर्ड लोगों को, जैसे जो जर्नैलों को ये बड़े बड़े प्लॉट्स वॉट्स देते हैं, इन जगहों में उन लोगों ने काफी इन लोगों को प्लॉट्स और ये सब चीजें एलोकेट करके रखी हुई हैं। पीओके के एरिया के अंदर तो पूरा ही आपको पता है कि जो टेरर आउटफिट्स और जो टेरर फैक्ट्रीज इन लोगों ने बना रखी हैं, बालाकोट में वो जाबा टॉप की जहां पर रेड भी हुई थी, और वो तो बड़ा सिग्निफिकेंट है, सईद अली शाह बरेलवी की, जहां पर मौत भी हुई थी, वो काफी सिग्निफिकेंट है इन टर्म्स ऑफ दैट काइंड ऑफ मिलिटेंट टेरर इस्लामिज्म। हाउ डू यू सी दीज थिंग्स प्लेइंग इनटू पिक्चर सर? बिकॉज लोग तो ठीक हैं, एक आर्मी एस्टेब्लिशमेंट जो यहाँ पर इंटरकनेक्टेड है, और आर्मी का जो प्रॉक्सी एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इस जगह पे इंटरकनेक्टेड है। अब बेचारे लोगों को तो पता नहीं उनके नाम पे क्या हो रहा है, आधे लोगों को तो पता भी नहीं होगा, बट हाउ डू यू थिंक दीज थिंग्स प्ले इनटू द रोल ऑफ पीओके एंड पीओजीबी सर? देखें, जाहिर है, वी आर अ कॉलोनी ऑफ पाकिस्तान, वी हैव बीन अंडर पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन फॉर 75 ईयर्स। पीओजे का चप्पा चप्पा जो है वो फौज के कंट्रोल में है। अब तो नेवी भी आ गई है। नेवी हमारे तमाम जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं उनको नेवी और एयरफोर्स खरीद रही है इन द नेम ऑफ डेवलपिंग टूरिज्म। लेकिन हम जानते हैं कि कहाँ का कौन सा टूरिज्म, टूरिज्म के लिए होटल और मोटेल और बड़े बड़े गेस्ट हाउस, फैंसी गेस्ट हाउस से पहले और बहुत कुछ है जो करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आपने ये ऐनक बनानी है, तो ये ऐनक बनाने का एक प्रोसेस है, उससे गुजरे बगैर अगर आप ऐनक बन नहीं सकती। तो इसी तरह टूरिज्म के लिए टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले तो सड़कें आ जाती हैं, कनेक्टिविटी। दूसरा उसमें आ जाता है कि आपके जो पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट शुड बी 24/7 पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोई टूरिस्ट आएगा और बिजली नहीं है तो वो क्या क्यों आए? वो गर्मी में मरने आएगा वो, या सर्दी है तो वो हीटर नहीं है। अच्छा, फिर आपके वहां पानी का मसला, फिर आपके वहां पे आफ्टर लाइक एवरी 20 माइल्स लेट्स से, और 25 माइल्स और 30 माइल्स, आपके वहां पे एक इमरजेंसी काइंड ऑफ हेल्थ सेंटर मेडिकल होना चाहिए। फैसिलिटी। जब कोई टूरिस्ट है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो वहां स्टेशन है, वहां पे उसको रख के ताकि उसको मेन हॉस्पिटल तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया जाए। इसी तरह से आपका डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। अगर कोई डिजास्टर हो जाता है तो आप वहां से टूरिस्ट को कैसे निकालेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो तो आप कर नहीं रहे। आप क्या कर रहे हैं? आप बना रहे हैं गेस्ट हाउस, और वो हमारी चोटियों पे जो हमारी सियाही मकामात है उन पे। तो इसका मतलब ये है कि आप फौज के जर्नैलों के लिए और फौज के अफसरों के लिए अयाशी के अड्डे बना रहे हैं, क्योंकि वो तो गाड़ी से नहीं आएंगे, वो तो हेलीकॉप्टर से आएंगे, हेलीपैड पे उतरेंगे, अपना वहां रहेंगे, एंजॉय करेंगे, व्यू देखेंगे, सारा कुछ करेंगे, और सारा जो उसके साथ होता है वो करके तो चले जाएंगे। तो इसी तरह से जहादियों का मसला है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि
हमने इंडिया के साथ तो हम शामिल हो जाएंगे बहुत जल्द, इसमें तो अब देर इतनी मुझे नजर नहीं आ रही। लेकिन मैंने ये प्रपोजल दिया है इंडियन गवर्नमेंट को कि हम पीओजेके को फ्री पाकिस्तान से आजाद कराने के बाद इंडिया के साथ वो शामिल हो जाए, लेकिन हमें 10 साल का या 5 साल का एक पीरियड होना चाहिए जिसमें रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होनी चाहिए स्टेट इंटरस्टेट, ताकि हम ये सारा गंद यहाँ से पहले निकालें। मैं नहीं चाहता एज अ लीडर ऑफ पीओजे के हम इंडिया के साथ शामिल हों और हमारा जो गंद पाकिस्तान ने अच्छा। हमारे खिते में गंद जमा किया हुआ है, ये गंद का जो क्या कहते हैं वो कूड़ा है, ये लेके तो मैं इंडिया में शामिल हूँ। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग जब इंडिया में शामिल हों तो इंडिया के जो लोग हैं वो रश्क करें, वो हमें देखें तो वो कहें कि क्या खूबसूरत लोग ही नहीं है बल्कि खूबसूरत दिमाग वाले लोग भी। हम वी वांट टू रीजॉइन इंडिया एज एन एसेट, नॉट एज अ लायबिलिटी। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमें भारत की सरकार को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होनी चाहिए कि अगर हम हिंदुस्तान में जब वापस शामिल हो तो पता नहीं कितना बजट हमारे लिए उनको देना पड़ेगा। हमें एक टेडी पैसा नहीं चाहिए भारत की सरकार, मतलब है हमें जो बजट है इंडिया का उसके हमें कोई टेंशन नहीं है। क्यों? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे 40 लाख की आबादी है हमारी, ठीक है ना? तो अगर हम सिर्फ शारदा पीठ खोल दें शारदा माँ का दर्शन के लिए, तो इतना टूरिस्ट इंडिया से आएगा कि उस टूरिज्म की जो इनकम होगी जनरेट, उसी से हमारे 40 लाख लोग खुशहाल हो जाएंगे। फॉरगेट अबाउट हमारे जंगलात की लकड़ी, हमारे मिनरल्स, हमारा पानी, उसको आप छोड़ दें। सिर्फ एक शारदा माँ, मैं हमेशा कहता हूं, हम हमारी कफालत करेगी। माँ अपने बच्चों की कफालत करती है, शारदा माँ हमें सब कुछ देगी, सब कुछ देगी। तो हम लाइबिलिटी नहीं है। फिर यह कि हमारे 15 लाख जो है पीओजे के लोग, वो यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका में है, जहां वो बेचारे मजदूरी करते हैं। उनके रेमिटेंसेस आते हैं बिलियंस के। तो फॉरेन एक्सचेंज की भी हमें कोई कमी नहीं हो। हम एक इंतहाई सेल्फ सफिशिएंट कंट्री के तौर पर जो है उभरेंगे इंडिया के साथ। यानी कि कंट्री कह रहा हूं, यानी कि एक इंडिया की पार्ट ऑफ जो, द कंट्री, हाँ जी, हाँ, स्टेट। पार्ट ऑफ दैट कंट्री के तौर पे। और ये जो है क्या नाम है इसका, आबादी हमारी थोड़ी है, लैंड हमारी बहुत है और खूबसूरत है। हमें तो कोई, और मैं डॉक्टर था, मेडिकल डॉक्टर में, और मैंने कई पर दफा प्रपोजल भी बनाए थे जिसमें कैसे हम हेल्थ के मसले को कैसे हल। मैं आपको बता रहा हूँ, विद इन 5 years वी विल एरेडिकेट ऑल this waterborne diseases. We will eradicate them. We will eradicate tuberculosis. We will eradicate polio. We will eradicate typhoid. We will eradicate malaria. We will eradicate every single uh, airborne or waterborne disease possible that we know of. हमारे लोग बेचारे मर रहे हैं और हम फील्ड सर्जरी के बनाएंगे यूनिट्स, जो जैसे अपेंडिक्स है या ओपन एब्डोमेन सर्जरी है या कोई सिस्ट रिमूवल है या कोई ऑर्थोपेडिक का कोई फ्रैक्चर की रिडक्शन है या इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं मैनेजेबल, ये हमारा फील्ड टीम करेगी। हम पेशेंट को आना ही नहीं पड़ेगा हॉस्पिटल में, हमारी टीम जाके वहाँ फील्ड थिएटर बनाएगी, फील्ड पे वहां पे जाके देहातों में और गांव में लोगों के ऑपरेशन करेगी। सिर्फ जो ब्रेन सर्जरी है, ओपन हार्ट सर्जरी है या कुछ सीरियस ऑपरेशन जो है, हिस्टेक्टमी हो गई या ब्रेस्टेक्टमी हो गई या इस किस्म के जो है, वो हॉस्पिटल्स में होंगे। लेकिन जो इस तरह के हैं हम मैनेज कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे बिल्कुल। और हर वो शख्स जो है, हम एक टीम मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेजेस में एक स्पेशल कोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। ना सिर्फ मेडिकल कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में पीओजेके की और गिलगित बल्तिस्तान की
जो होगी ऑन द लाइंस ऑफ चाइनाज बेयरफुट डॉक्टर, जो चाइना ने बेयरफुट डॉक्टर किए थे, 3 साल की ट्रेनिंग देते थे, उसके बाद बैग देते थे, स्टेथोस्कोप, बीपी ऑपरेटर्स और एक बैग देते थे और कहते थे चलो जी जाओ पढ़ो। और ऐसे उन्होंने लोगों के सेहत ठीक की। वो कोई टेंशन मुझे नहीं है इस चीज की। मसला ये है कि पीओजे के और पीओजीबी के लोगों को अब ये फैसला करना है कि उन्होंने आज तक जिन्होंने कश्मीर के नाम पर सियासत करके दौलत कमाई और धोखा दिया और यूनाइटेड नेशंस के जाके डोर नॉक करते रहे या यूरोपियन कंट्रीज की पार्लियामेंट के मेंबर से मिलके फोटो सेशंस कराते रहे, अगर उनको उनके साथ साथ देना है या हमारा साथ देना है, जिनके पास एक पूरा रोड मैप है खुशहाली का। और मैं बता रहा हूँ 5 साल में इस पूरे खिते की जो है शक्ल बदल जाएगी, शक्ल बदल जाएगी। जी हाँ सर, पॉपुलेशन थोड़ी है, ऑफ कोर्स नेचर इज क्वाइट अ लॉट। सर इसमें एक जो एक कहानी की जो सबसे बड़ी ट्विस्ट है, इस कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, दैट इज चाइना, जो वहां पर बैठा हुआ है चाइना के हमें CPEC। कोई टेंशन नहीं है। इन लोगों ने तो सर अभी बोलते तो देखिए ऐसा है, जो इंडिया में रूमर चलते हैं कि यार पाकिस्तान के पैसे पूसे हैं देखिए नहीं, पता मैं चले आपको बताऊं तो जगह चाइना की देख के हमें बैठ क्यों गए। टेंशन नहीं है। जी। इंसान के अपने मसल में पावर होनी चाहिए। हम जब इंडिपेंडेंट होते हैं पाकिस्तान से तो अपने जोरे बाजू पे होंगे, तो चाइना आएगा, निगोशिएट करेगा, तो ट्राई पैट्राइट नेगोशिएशंस होंगी बिटवीन चाइना, बिटवीन अस एंड इंडियन गवर्नमेंट जो है सेंटर, तो तय कर लेंगे क्या करना है। भाई सी पैक का मसला है ना, हम्म। तो पहले तो बलोचों को का मुल्क चाइना को चाहिए कि बलूचिस्तान को एक अलग मुल्क बनाने में बलोचों की हेल्प करें। अगर आज चाइना दिमाग से काम ले तो गिलगित बल्तिस्तान की हेल्प करे कि वो वापस इंडिया में चला जाए, बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट कर दे। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को कहे कि भाई सी पैक का जो रूट है इसमें से हम एक ऐसे रास्ता निकाल रहे हैं, आप भी इसको इस्तेमाल करें, नो टेंशन, हमें कोई टेंशन नहीं। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ सी पैक का मुआहदा करें, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो भाड़ा दें सी पैक का, और रास्ता खोल, वो भी चले हम भी चले। मैं तो शुरू दिन से ये कहता हूँ, ये दो सुपर जायंट ताकतें यहाँ पे एशिया में खड़ी हो रही हैं, चाइना एंड इंडिया। Why do we have to be so antagonistic towards each other? Why can't we find a middle ground, sit together and, rule the world together? We have two Asian giants. Instead of competing between being antagonistic towards each other, we should be we should unite and conquer the world. Conquer the world. ये होनी चाहिए। You एब्सोल्युटली। know सर एक approach. छोटा सा जी लास्ट सवाल है। ऑफ कोर्स आप देख ही रहे हैं पाकिस्तान में हो क्या रहा है। एक तरफ एक गवर्नमेंट इमरान खान के पीछे पड़ी है, आर्मी सबको जेल में डालने के पीछे पड़ी है। वहां पर बलूचिस्तान में तो लिटरली अब बोलते हैं कि हम ये तो पाकिस्तानी ही बोल रहे हैं कि यार वहां पर जाना अभी थोड़ा खतरे से खाली नहीं है, क्वेटा तक चले जाओ, उसके आगे मत जाना, इधर उधर मत जाना, क्योंकि रूल ऑफ लॉ खत्म हो रहा है। केपी की एरिया में रूल ऑफ लॉ खत्म हो रहा है नहीं सर। नहीं, कोई रूल ऑफ लॉ खत्म नहीं हो रहा। ये कोई आप रूल क्या ऑफ लॉ क्या हो खत्म रहा है नहीं हो सर? रहा। ड्यूल ड्यूल रूल ऑफ लॉ चल रहा है। मैं अगर आप किसी ऐसे इलाके में चले जाएं हाँ जी। बलूचिस्तान के, जो कंट्रोल करती है BLF या BLA या यूनाइटेड रिपब्लिक गार्ड्स या यूनाइटेड रिपब्लिक आर्मी, आप उनके इलाके में चले जाएं, वो आपकी बड़ी सेवा करेंगे, बड़ी खिदमत करेंगे। अगर आप एज अ नॉन कॉम्बैट टूरिस्ट के तौर पर है या वहां से गुजर रहे हैं, वो बड़े मिलनसार, ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है इनका कि वहां नो मैंस लैंड है। नो मैंस लैंड है फौज के लिए, पाकिस्तानी लेकिन बोलते हैं इसे। पाकिस्तानी फौज जो इलाके कंट्रोल करती है, अगर वहां से आप गुजर गए और पकड़े गए, तो फिर आपकी वो छितरौल होगी कि आपको आ जाएगा छठी का दूध याद। लेकिन जो बलूचों के कब्जे में इलाके हैं वहां पे तो बहुत अच्छा सिस्टम है। तो सर ये जो अपसेटिंग चीजें हो रही हैं, हमारे लिए तो अपसेटिंग नहीं है, हमारे लिए तो अच्छा है, बट ये जो चीजें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, पूरा स्ट्रक्चर लिटरली हिला हुआ है अभी इमरान खान साहब और इन सब के चक्कर में। पूरा हाँ हिला स्ट्रक्चर हुआ हिला है। हुआ है।
नाउ ये मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है to create a separate structure for yourself within Gilgit Baltistan and Pakistan occupied Kashmir area. इसका कुछ आपको दिखता है कि कुछ फायदा उठाने का इस देखिए अपॉर्चुनिटीज इज ऑल अबाउट टाइमिंग सर. द राइट एक्शन एट द राइट टाइम विल एक्चुअली गिव यू टाइम द आ रहा बेस्ट है ना, रिजल्ट. आपको बताया है बस, अब इससे ज्यादा मैं आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता. You will एब्सोल्युटली सर. have you will be able to share good news with your audience pretty soon. Don't worry. नाइस We टू are हियर दैट working सर. on it. सर आई मस्ट से आपने मेरे को ज्वाइन करा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड मेरे को ये जो स्ट्रक्चरल सवाल होते थे बिकॉज लोगों के बारे में जो आपने बताया दैट दिस इज समथिंग दैट पीपल विल नॉट नो, क्योंकि हमारा उनके साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं है. अब वो भी डरते होंगे किसी हिंदुस्तानी के साथ कांटेक्ट करा तो मरेंगे यार, कोई आके मारेगा हमको. इतना तो अभी आजकल टेंशन है. तो we don't understand the plight of the people. All we see is some propaganda from Pakistani army side जो बोलते हैं भाई सब कुछ ठीक है, और दूसरी तरफ से प्रोपेगेंडा मिलता है जब हमको, जैसे आपने समझाया, आजादी के स्लोगन्स सुनाई को पड़ते हैं. अब उसका क्या इंटरप्रिटेशन इंडिया में निकलता है वो तो टोटली अलग स्टोरी है. मेरे जैसे लोगों को सर प्रोपेगेंडा के अलावा मुझे असलियत पता करनी है जो आपने मेरे को बताई. एंड आई एम ग्रेटफुल एंड थैंक यू फॉर दैट. आई विल बी कीपिंग इन टच विद यू सर. आपके साथ बात करने में एंड टू लर्न फ्रॉम यू, इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. वंस अगेन सर, Thank you. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी एंड Thank you. लेट सी यू Thank अगेन you. सर. See you जय again. हिंद. Jai Hind. Thank you.